Students, good morning. I hope we will meet soon at our school. Before summer vacation, we learned method and constructors. Now to avoid session late, we need to start the syllabus of second term. In second term, we will study chapter 6 before chapter 5 because chapter 6 encapsulation is related to chapter methods. Many topics of this chapter is already described in method chapter. So let's start chapter 6 encapsulation. You know already about encapsulation. Encapsulation binds data members and member methods together inside a class. It avoids the unauthorized access of any data. हालांकि इनकैप्सुलेशन जो है वो रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, उसको नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये 90% मेथड से ही बिलोंग करता है, इसलिए इसके थ्रू हम लोग मेथड को ही रिवाइज कर रहे हैं। एंड हम जैसा कि जानते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एक यूनिट में, दैट मीन्स क्लास के अंदर क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स को बाइंड करने का एक प्रोसेस है। To control the encapsulated data, we use public, protected, default, private, extra as a access specifiers. Scope and visibilities. Every methods and variable has an accessible limit that is called its scope. There are some rules that determines the scope and visibility. Variables declared at the class level can be used by all method in that class. That means the global variables. Variables declared within a method. That means local variable can be used only in that method. Variables declared within a block, it is also a local variable, can be used only inside of that block. Variable declared in interior blocks are not visible outside of that block. In nested block, the variables declared inside the interior blocks are not visible outside of that block, but a variable declared in outside block can be accessible in interior blocks. Variable declared in exterior blocks are visible to the interior blocks. वेरिएबल का स्कोप जनरली इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे बना हुआ है। अगर वो जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना हुआ है, बस उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कर्ली ब्रैकेट जब बंद हो जाएगा तो उसका विजिबिलिटी वहीं पे फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Depending on the scope and visibility, variables are classified as global variables and local variables. Global variables are declared outside of every methods, and local variables are declared inside a method or a block. As a global variable, class variables or instance variables are used, and as a local variables, the variable declared inside the methods, the variable declared inside the method arguments, and the variable declared inside the loop, if, or any other blocks are known as local variables. A local variable having the same name as that of global variable hides the global variable. It means, in an example, if a variable is declared globally with name a, int a, and if we declared a local variable also with the name int a, then local variable a hides the global variable. In that case, to access the global variable, we need to use this keyword as we have learned in method chapter or constructor chapter. Encapsulation provides many facility. It is a way of organizing data. By using encapsulation, we can organize data as a member variable or member methods. It provides control over data's access by using SS specifier. It hides the structure of data.
It's the main facility of encapsulation. It hides the structure as well as all the complexity of data, and it hides the logic of implementation also. वैसे तो मेथड का हर प्रोग्राम जो होता है उसमें इनकैप्सुलेशन का यूज होता ही है। हालांकि इस प्रोग्राम में देखो कि एम्प्लॉय नाम का हम लोगों ने एक क्लास बनाया है जिसमें डेटा मेंबर्स लोग लिए हैं, एम्प्लॉय नेम और उसके बाद आईडी, फिर उसका सैलरी, एंड फिर एक इनपुट मेथड बनाया और उस इनपुट मेथड के थ्रू हम लोग उसमें एम्प्लॉय का डिटेल इनपुट किए। वो सारा डिटेल्स इनपुट करने के बाद हमारा क्लास का नाम हो गया एम्प्लॉय, एंड इसका जो एट्रीब्यूट्स हुआ वो एम्प्लॉय नेम, आईडी एंड सैलरी हो गया। एंड आफ्टर दैट ये सब प्राइवेटली डिक्लेयर किया गया है। दैट मीन्स हम लोग इसको दूसरे क्लास में यूज नहीं कर सकते हैं, हमको इसी क्लास में यूज़ करना पड़ेगा। और फिर इनपुट नाम का मेथड बनाए हैं। इस मेथड के थ्रू हम उसमें डाटा इनपुट लेंगे। जितना भी एट्रीब्यूट्स डिफाइंड है इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स में डाटा इनपुट करेंगे और डाटा इनपुट करने के बाद हम फिर एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाएंगे और डिस्प्ले मेथड में फिर सारी चीज़ को डिस्प्ले किया जाएगा। फिर हम लोग उस क्लास को क्लोज कर देंगे। इस प्रकार हम लोग एक क्लास क्रिएट किए जिसमें हम इनपुट और डिस्प्ले दो मेथड बनाए और ये दोनों मेथड हो गया क्लास का बिहेवियर, एंड जो नेम, आईडी, सैलरी सब हो गया वो हो गया उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये दोनों चीज़ इनकैप्सुलेट किया गया है एम्प्लॉय क्लास के अंदर। अब है कि हम लोग एक और क्लास बनाए जिस क्लास में उसको हम लोग एज ए लाइब्रेरी मेथड यूज़ करेंगे। जैसे लाइब्रेरी मेथड को यूज़ करते हैं वैसे अपने क्लास बना के यूज़ करेंगे। यहाँ हम लोगों ने मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन क्रिएट करने के बाद कंपनी क्लास के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ऊपर जो एम्प्लॉय क्लास बनाया है उसका E1 एंड E2 का, एक E1 नाम से और एक E2 नाम से दो ऑब्जेक्ट बनाए। और किस क्लास का? एम्प्लॉय क्लास का। तो ऑफ कोर्स उसके पास वो सारा फैसिलिटी आ गया, नेम, आईडी एंड सैलरी, जो कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर डिफाइंड किया गया है। वही सारा का सारा जो डिटेल्स है वो मिल गया इसमें। अब हम लोग इनपुट मेथड को कॉल करेंगे ताकि वो सारा डिटेल्स इनपुट हो, और इसके लिए हम लिखेंगे E1 डॉट इनपुट एंड E2 डॉट इनपुट। E1 डॉट इनपुट से एम्प्लॉय 1 जो ऑब्जेक्ट बना है उसमें सारा इनपुट होगा और E2 डॉट इनपुट से सेकंड एम्प्लॉय के लिए डिटेल्स जो तीनों है वो सारा तीनों इनपुट हो जाएगा। तीनों मीन्स यहाँ पर जो आईडी वगैरह उससे है। डिस्प्ले मेथड का यूज़ हम लोग फिर करेंगे सारी डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये सारे मेथड्स बना हुआ है एम्प्लॉय क्लास में, हम लोग उसका इस क्लास में यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को बताने के लिए कि यहाँ हम लोग एक क्लास का डाटा दूसरे क्लास में जो इस्तेमाल किए हैं इसी को हम लोग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहेंगे। यहाँ एम्प्लॉय हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। प्राइवेट मेंबर्स जो भी होता है क्लास का वो दूसरे क्लास में एक्सेस हो, इसके लिए हमको उसके सारे मेथड्स को पब्लिक बनाना पड़ा ताकि हम उसको दूसरे क्लास में यूज़ कर सकें। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ किए हैं एम्प्लॉय क्लास के मेथड को कॉल किए हैं दूसरे क्लास में, तो इस चीज़ को अवेल करने के लिए यहाँ चाहिए कि मेरा वो जो डाटा है वो पब्लिक होना चाहिए, तभी वो एक्सेस हो पाएगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। इस प्रकार हम देखें कि कैसे क्लास को इनकैप्सुलेट करके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे और उसका यूज़ करेंगे। ओके देन, थैंक यू।